برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اعزاز میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے فروغی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرکت کی۔ تفصیلات جانیے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہائی لائٹ کرنے کی پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ عالمی برادری کو اصل پہلو سے آگاہی ممکن ہو سکے۔ مشیران صدر ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر کرامت چودھری اور چودھری خادم حسین کی طرف سے منعقد جلسہ کے مہمان خصوصی صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر کشمیری کمیونٹی کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیری لیڈروں کو پابند سلاسل کر کے کشمیر کی آواز کو دبا کر اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کے کشمیر ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ مودی سرکار کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے تحریک کشمیر میں ایک نئی جدت پیدا ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر کا مزید کہنا ہے کہ میں واحد کشمیری لیڈر ہوں جس نے کشمیریوں کی آواز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھائی، اور برطانیہ اور یورپ کے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کو حریت لیڈر یاسین ملک کی غیر قانونی سزا کے خلاف اور نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بتا سکوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اہم موڑ پر ہے اور تمام کشمیری لیڈرز اپنی سیاسی اور جماعتی وابستگی سے ہٹ کر ملین مارچ کی طرح متحد ہو کر بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کریں تاکہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت مل سکے۔ آج برمنگھم میں یہاں پہ دوستوں نے مختلف شہروں کے جو کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ، اور میں نے ان سے گفتگو کی ہے، اور بنیادی طور پر آج میں نے جو انہیں پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک فیصلہ کن، نازک اور اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارت اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ہم نے میچنگ رسپانس دینا ہے۔ تو میں نے تمام کشمیریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتی، سیاسی، نظریاتی وابستگی سے بالا تر ہو کے متحد ہو جائیں، اور ہم نے ملین مارچز کیے تھے، ہم نے کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل سے، اسی کو میں نے کہا آگے بڑھایا جائے، اور نہ صرف برطانیہ لیول پہ، زونز لیول پہ، بلکہ ہر شہر کی لیول پہ وہ متحد ہو جائیں تاکہ کوئی بھی کال دی جا سکے تو اس میں پھر زیادہ دیر نہ لگے۔ تقریب سے چودھری غفور کھاڑک، چودھری دل پذیر، چودھری مالک، چودھری نوید اقبال، چودھری حکمداد اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور یاسین ملک سمیت دیگر کشمیری رہنماؤں کی رہائی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ معروف صحافی، ممبر پارلیمنٹ اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ملائیشیا چیپٹر کا تعزیتی اجلاس کوالالمپور میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت PFUJ ملائیشیا کے کنوینر جاوید الرحمان نے کی۔ شرکاء نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ معروف صحافی، MNA اور ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر PFUJ ملائیشیا چیپٹر کا تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت PFUJ ملائیشیا کے کنوینر جاوید الرحمان نے کی۔ تعزیتی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اجلاس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی صحافتی اور پیشہ ورانہ خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی شخصیت کا ہر پہلو اپنی مثال آپ تھا۔ نیوز پریزنٹر، اینکر پرسن، تجزیہ نگار، مصنف اور سیاسی کارکن، ہر میدان میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے نظر آئے۔ ان کی ناگہانی موت سے صحافت اور سیاست کا ایک روشن باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تمام صحافیوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اچانک وفات پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آج ہم میں نہیں ہیں، مگر صحافتی خدمات میں ان کی جتنے بھی کام ہیں وہ امر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو پوری دنیا میں اردو جاننے والے، بولنے والے انسان ان کو بڑی محبت سے یاد کر رہے ہیں، ان کے دل اداس ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ موت برحق ہے، ہر کسی نے جانا ہے، پر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی دکھ دے جاتی ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ ایک انتہائی ملنساز، خوش اخلاق انسان تھے۔ ڈاکٹر لیاقت صاحب کی جو شخصیت تھی، شاندار شخصیت تھی، اچھے اسکالر تھے، اور جس میدان میں بھی اترے ہیں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام
इस्लाम की हो या वो सियासत का मैदान हो या वो खेल का मैदान हो, वो किसी किस्म जिस मैदान में भी उतरे हैं ना, उन्होंने अपना लोहा मनवा के बताया कि तरक्की कैसे की जाती है। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया आलम ऑनलाइन के नाम से, उसको भी उन्होंने अपने वर्सटाइल तरीके से बामे रोज तक पहुंचाया। पाकिस्तान का एक वक्त में रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 वो प्रोग्राम रहा। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला उसको पूरी लगन से एक नए अंदाज में किया और उसको बामे रोज तक पहुंचाया। अल्लाह ताला मरहूम की सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो गलतियाँ हैं, कोताही हैं, उनसे दरगुजर फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमर लियाकत अब हम में नहीं रहे। PFUJ के प्लेटफॉर्म से, मलेशिया से हम सब दोस्त सहाफ़ी बरादरी इस दुख की घड़ी में उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। इजलास में मलेशिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों मोहम्मद इरफान सैफ़ी, मलिक वाजिद, SM अब्बास, मोहम्मद वकार, ज़ियाउर रहमान खुराना और जावेदुर रहमान ने शिरकत की। आखिर में मरहूम डॉक्टर लियाकत आमिर हुसैन की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ की गई। जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। मक्का मुकरमा में वाक़ पाकिस्तान हज मिशन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुज्जाज कराम को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया गया। इजलास में शरीक पाकिस्तान हज मिशन हुक्काम का कहना था कि हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। हज मिशन मक्का मुकरमा में मुनक्किदा इजलास की सदारत डायरेक्टर जनरल हज इब्रार मिर्ज़ा ने की, जिसमें डायरेक्टर हज मक्का मुकरमा साजिद असदी और डायरेक्टर मेडिकल मिशन कर्नल नदीम अब्बास समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तानी हुज्जाज को दी जाने वाली रिहाइश, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हज मिशन के अरकान से इजहार ख्याल करते हुए डायरेक्टर जनरल हज इब्रार मिर्ज़ा का कहना था कि हुज्जाज कराम को सहूलियात फराहम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। 14 जून से पाकिस्तानी हुज्जाज मक्का मुकरमा पहुँचना शुरू हो जाएंगे, जिनकी खिदमात के लिए हज मिशन का अमला पूरी तरह तैयार है। इजलास के दौरान मदीना मुनव्वरा और जद्दा से हुज्जाज को मक्का मुकरमा लाने के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका को बताया गया कि हुज्जाज कराम को 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हस्पताल और डिस्पेंसरी भी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सैयद फैजुल हसन शाह के एजाज़ में बार्सिलोना के कुर्तबा हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहवाल जानिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान से आए तहरीक इंसाफ के MNA सैयद फैजुल हसन शाह के एजाज में OPC स्पेन के कोऑर्डिनेटर चौधरी इम्तियाज लौरा की जानिब से मकामी रेस्टोरेंट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, मीडिया के नुमाइंदों और गुजरात हल्के के अफराद ने शिरकत की। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बार्सिलोना आमद पर वेलकम कहा और अपने हल्के के लिए उनकी खिदमत को खूब सराहा। मुकर्रिरीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा ही पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों को दिल खोल कर वेलकम करते हैं। पार्टी वाबस्तियों से हटकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर पाकिस्तानियत का सबूत देते हैं। फैजुल हसन शाह ने अपने खिताब में कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहते हुए उनकी मेहनत, लगन, फैमिली और मुल्क अजीज के लिए उनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट के हक के खिलाफ जो बिल पास करवाया है उसे हम इंशाअल्लाह दोबारा बहाल करवाएंगे। उन्होंने चौधरी इम्तियाज लौरा और पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा किया। बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये नेगेटिव लोग, जो इम्पोर्टेड लोग हैं, इंशाअल्लाह ये फारिग होंगे, इलेक्शन होंगे तो फिर वही निज़ाम आएगा जो हम चाहते हैं, PTI जो चाहती है। बजट मैंने पहले आपसे गुजारिश की, नेगेटिव एक्सपर्ट हैं, ये जमा तफरीक करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं बजट है क्या। इस हवाले से भी ये प्रोग्राम ज़रूरी है ओवरसीज़ के लिए कि ओवरसीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे ये नुमाइंदे जो असम्बली में बैठते हैं वो सुने और सुन कर जाके ओवरसीज़ के प्रॉब्लम जो है उनको हल कराने की कोशिश करें। OPC और पाक स्पेन बिजनेस काउंसिल की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाजी शील्ड्स भी पेश की गयीं। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ पाकिस्तानी खानों से की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के कायम मकाम सफ़ीर अजीम खान का कहना था कि सफारत खाने पाकिस्तान यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को तेज़ तरीन काउंसलर सर्विस मुहैया की जाए। मजीद हवाल अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में।
यूनान के सबसे बड़े जजीरा करीती में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए 3 रोज़ा काउंसलर कैंप लगाया गया और करीती में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को उनकी दहलीज पर काउंसलर सर्विस मुहैया की गई और करीती के 2 बड़े शहरों में खुली कचहरी लगाई गई जहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के मसाइल सुने गए। जजीरा करीती में इस वक्त 5000 पाकिस्तानी मुकीम हैं जो खेती बाड़ी के पेशा से मुंसलिक हैं। सिफारत खाना के काउंसलर सेक्शन के जरिए 500 पाकिस्तानी मुस्तफीद हुए। जजीरा करीती में मुख्तलिफ हिरासती कैंपों का दौरा भी किया गया और कैंप इंतजामिया से मुलाकातें भी हुई और इन कैंपों में कैद पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। यूनान में पाकिस्तान सफारत खाना के कायम मकाम सफीर अजीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को तेज़ तरीन और काउंसलर सर्विस मुहैया की जाए। हमने उनके साथ डिस्कस किया कि पाकिस्तानियों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका ख्याल किया जाए और ये इंस्ट्रक्शंस हमने खुसूसन डिटेंशन सेंटर ऑफ प्रिजन्स में दी कि भाई ये यहाँ पे लोगों के खाने का ख्याल किया जाए और इनके कपड़ों का और भी कोई किसी कोई मसाइल हों कंप्लेंट्स हों तो वो हमसे शेयर किया जाए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकें। जजीरा करीती के पुलिस चीफ से भी सफीर ने मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। सफारत खाना पाकिस्तान आने वाले दिनों में यूनान के मुख्तलिफ इलाकों और जज़ायर का दौरा भी करेगा और इन इलाकों में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काउंसलर सर्विसेज मुहैया की जाएगी। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया। शहीद कांझो ग्रुप लोधरा के सदर शेख इफ्तिखार तारी का दुबई में मारूफ पाकिस्तानी नौजवान बिजनेसमैन मलिक हन्नैन चौहान के ऑफिस आमिर, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहीद कांझो ग्रुप लोधरा की ये रिवायत रही है कि वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर आवाम की आवाज़ बनते हैं। तफसीलात सईद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। शहीद कांजू ग्रुप लोधरा के सदर शेख इफ्तिखार तारी इन दिनों अमारात के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो दुबई में पाकिस्तानी नौजवान बिजनेसमैन मलिक हन्नैन चौहान के ऑफिस पहुंचे जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। उनका कहना था कि कांजू ग्रुप का मकसद अवामी खिदमत करना है और आवाम के मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो दुबई में निजी दौरे पर आए थे मगर यहाँ पर मलिक हन्नैन चौहान, मलिक बशीर अहमद चौहान, मेहर अजमल, मियाँ सलमान, शहबाज बलोच और कांजू ग्रुप की दीगर की शख्सियात जो प्यार दिया वो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे अक्सरियत आपने देखा होगा इस खासकर इस सराउंडिंग में लोधरा के लोग ज़्यादा हैं। जब लोधरा के लोग हैं तो वो ज़ाहिर है रिलेटेड तमाम 80% 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह शहीद कांजू ग्रुप से रिलेटेड हैं। उनकी प्यार, उनका मोहब्बत, आज मुझे कल इन्होंने मैसेज दिया कि हमने दोस्तों ने इकट्ठे होना है। आज इनके प्यार और उनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ आया हूँ और इनका रिस्पॉन्स, इनका प्यार मोहब्बत देखकर इनका इंतहाई मशकूर हूँ मैं। इन दोस्तों का जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इनके अंदर आज मैंने पहले भी गुजारिश की कि रोज़गार के सिलसिले में आए लेकिन पार्टी और सियासी एफिलेशन आज भी अपनी मकामी वसीयत के साथ रखी हुई है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए लोधरा के नौजवान बिजनेसमैन मलिक हन्नैन ने कहा कि हमारी वाबस्तगी किसी पार्टी से नहीं बल्कि हम सिर्फ अब्दुर्रहमान कांजू साहब की क़ियादत में शहीद कांजू ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि अवाम की बेलौस खिदमत की जा सके। पार्टियों से बलातर हो के हम लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अब्दुर्रहमान कांजू साहब वो वहाँ पे वेल रेपुटेटेड और हर टाइम सरगर्म कारकुन है, वो वहाँ के लीडर हैं हमारे, तो उनकी बदौलत हम लोग शहीद कांजू ग्रुप को वो कर रहे हैं ज्वाइन। ये नहीं कि हम नून लीग में जा रहे हैं, पीटीआई में जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी में, हम सिर्फ अब्दुर्रहमान कांजू साहब के साथ में सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था दुबई यूएई में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत कांजू ग्रुप को पहले भी सपोर्ट करती थी और आइंदा भी सपोर्ट करती रहेंगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। 3 बार कैंसर जैसे मोजी मर्ज को शिकस्त देने वाले आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट याकीम कैसर की जानिब से दुबई में अपनी मशहूर कॉस्मेटिक्स, ब्रॉड किट्स और सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। इस मौके पर इवेंट मैनेजमेंट और खानों की आलमी शख्सियत फ्राइड मैन कोचन में मेस्टर अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर और मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा सोनिया मजीद समेत बड़ी तादाद में यूरोपीय कम्युनिटी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट। कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अब इतना आम हो चुका है कि इनका शुमार बुनियादी जरूरियात की अशिया के तौर पर किया जाने लगा है। मारूफ आर्टिस्ट याकीम कैसर ने 3 बार कैंसर को शिकस्त कैसे दी, इस राज से पर्दा उठा दिया और वो सप्लीमेंट्स मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतारिफ करवा दिए, जिसने इन्हें कैंसर से लड़ने में मदद दी। याकीम कैसर ने अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफीर और दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी गुलकार सोनिया को प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। याकीम कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरा को अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वो 3 बार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़े और जो सप्लीमेंट्स वो मुतारिफ करवा रहे हैं इससे उनको सेहतमंद बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। शुरा ने याकीम कैसर
کیسر کی کینسر کے خلاف جدوجہد کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یاخیم کی کہانی سننے کے بعد ان میں بھی ہمت پیدا ہوئی ہے کہ اگر جذبہ ہو تو کسی بھی بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یاخیم کیسر فرائیڈ مین کوچنگ میسٹر اور گلوکارہ سونیا مجید سمیت دیگر کا 92 نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مشہور کاسمیٹکس اور سپلیمنٹس کو امارات میں لانچ کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ I was formerly, before I have defined my own brand, I was a manager for an international bank, interims manager, and I got twice cancer, and I passed this time, and if you have cancer twice, you change your whole life, because you do something what's not very good for your soul, and therefore I took the way to health and beauty, and this I do since 35 years, and I'm glad to be here. جو یاخیم کیسر ہے، ان کی کمپنی ہے، اس کی میں فیس آف دا کمپنی ہوں، برانڈ ایمبیسڈر ہوں۔ سب سے خوشی کی بات مجھے یہ ہے کہ میں ایک یورپ کی بہت بڑی جو کمپنی ہے جو نیوٹریشن پہ میڈیسن بنائیں گے، اور سب جانتے ہیں کہ یاخیم کیسر بہت گریٹ انسان ہے، تو جب یہ بنے گا تو یہ پوری دنیا میں جائے گا، ہمارے پاکستان ایشیا میں بھی جائے گا، تو میں فیس آف دا کمپنی ہوں تو اس کو پروموٹ کروں گی۔ Catering company, 29 years, was in Germany, working in Singapore and Japan, in France, in England, and last 12 years I was in Russia. Make a lot of big events all over the world, and now I come to Dubai. I have with my friends here a new project. We want to do a new catering company for forums, for business meetings, for wedding and birthdays, whatever. سونیا مجید امارات میں یاخیم کیسر اور فرائیڈ مین کوچنگ میسٹر دونوں کے گروپس کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں۔ شرکا نے ایونٹ کو شاندار قرار دیا کیونکہ انہوں نے مقررین کے ذاتی تجربات کو سنا اور استفادہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔